Assalamualaikum everyone. I'm Shazia Aslam, Associate Professor of College, Lahore. All of you are welcome in this promotion link training and best wishes for the future ahead. After a comprehensive research lecture by Professor Dr. Amna Muazzam, today we will discuss the topic data collection tools and techniques in research. My objective with this presentation is to make a quality time for all of you. This is the overview of the topic. Although the topic is very simple, लेकिन फिर भी हम इसकी depth तक जाएंगे. That is data for research, primary data, secondary data, tools and techniques of data collection for qualitative research and quantitative research as well. This is the introduction of the topic. One of the main stage in research study is data collection that enables the researcher to find answer to research questions. Data collection is the process of collecting data aiming to gain the insight regarding the research topic. There are different types of data and different data collection methods accordingly. However, it may be challenging for researchers to select the most appropriate type of data collection based on the type of data that is used in research. This lecture aims to provide comprehensive sources for data collection methods, including defining the data collection process and discussing the main types of data. The concepts of population, sample, sampling frame, types, and techniques are also introduced. Finally, the main challenges of data collection are listed. In the last section, ethical consideration in the data collection process are reviewed. I have divided complete topic into three parts. Part one is based on data for research, sources of data, primary and secondary data. Data is the plural form of datum, meaning a piece of information. Data are units of information, may be numeric or narrative. Data collected through different data collection techniques. Data collection is the process by which the researcher collects the information needed to answer the research problems. यहाँ पे हम बात करेंगे data actually वो information है when we start to conduct a research, we must have some information to proceed for the future, for the research in future. वो information जिसको लेके हम अपने findings तक जाएंगे, जिसकी बेस पे हम analysis करेंगे, जिसको बाद में हम पूरी population पे generalize करेंगे, वो information, वो data क्या होता है, कहाँ से हासिल होगा, कौन कलेक्ट करेगा, कब कलेक्ट करेगा, ये सारी बातें हम इस लेक्चर में करेंगे. Sources and types of data. Types of data by purpose of the collection, that is primary and secondary. By nature, qualitative and quantitative. Sources of data are primary data sources refer to the original data collected first-hand by researchers specifically for their research purpose. These sources provide fresh and relevant information tailored to the study's objective. And examples of primary data sources included surveys, questionnaires, direct observation, experiments, in-depth interview, and focus groups. जब हम एक particularly अपनी एक खास रिसर्च को लेके, जिसको आपने टेलर किया होता है, जिसको आपने रिसर्च के टॉपिक को सिलेक्ट करते हैं, रिसर्च क्वेश्चंस बनाते हैं, उसके ऊपर सिनॉप्सिस बनाते हैं, कंप्लीट एक मेथड बनाते हैं और उसका इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंगली डाटा कलेक्ट करते हैं. वो पर्टिकुलरली डाटा, वो इंफॉर्मेशन जो आपने अपने रिसर्च, अपने हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंगली उसको टेलर किया होता है और फर्स्ट टाइम आप ही सिर्फ उसके ऊपर डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं और डाटा कलेक्ट आप इंटरव्यू के थ्रू कर रहे हैं.
रिगार्डलेस ऑफ दैट कि आप क्वेश्चन से कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन से कर रहे हैं, फोकस ग्रुप डिस्कशन से कर रहे हैं, वट एवर द मेथड इज, लेकिन फर्स्ट टाइम आप ही कलेक्ट कर रहे होते हैं, इससे पहले किसी ने उस टॉपिक पे कोई डाटा कलेक्ट नहीं किया होता। Secondary data sources involve data collected by someone else for some purpose other than your specific research. Examples हैं इसकी published literature, government sources, databases, market research reports. Particularly आपने जो first hand information collect की, that is your primary data, लेकिन अपनी research के according के लिए हमें समटाइम्स सेकेंडरी डाटा की भी जरूरत पड़ती है। वो सेकेंडरी डाटा जितना भी पब्लिश्ड अनपब्लिश्ड किसी तरह से भी आपके पास पड़ा हुआ होता है, वो आर्टिकल, वो बुक्स, ये सारी चीजें जो है ये सेकेंडरी डाटा होता है, जो पहले कभी किसी ना किसी पर्पस के लिए कलेक्ट हुआ होता है। सोर्सेज ऑफ डाटा, सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डाटा, सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा में मैंने जैसे कि पहले आपको बताया है कि वो सर्वे, क्वेश्चन और एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप फर्स्ट हैंड जो इंफॉर्मेशन लेते हैं वो होती है, और सेकेंडरी डाटा वो होता है जो सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन होती है, जो पहले से कभी कलेक्ट हुआ था किसी और पर्पस के लिए। सेकेंडरी डाटा में बी पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड। अब सेकेंडरी डाटा जो पहले कभी किसी ने कलेक्ट किया था, वो आपको दो सूरतों में मिल सकता है, पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड, दोनों सूरतों में मिल सकता है। अनपब्लिश्ड के लिए समटाइम्स ग्रे लिटरेचर का लफ्ज भी यूज किया जाता है। और पब्लिश्ड डाटा कौन कौन सा होता है, इसमें बुक्स, मैगजीन, न्यूज़पेपर, रिपोर्ट्स prepared by research scholars and universities, public record, statistical and historical document. नेक्स्ट इज डेटाबेसेस। डेटाबेसेस क्या होता है? एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा स्टोर्ड एंड एक्सेस्ड इलेक्ट्रॉनिकली, लाइक पबमेड है, साइंस डायरेक्ट है। ये इजी वे होता है जिसपे आपको एक ही जगह पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली कलेक्टेड होती है, वो आपको मिल जाती है। इसमें समटाइम्स आपको फुल लेंथ आर्टिकल भी मिल जाते हैं, समटाइम्स आपको एब्स्ट्रैक्ट सिर्फ मिलते हैं। तो ये बहुत सारी डेटाबेसेस हैं जिसके वजह से आप अपना पब्लिश डाटा जो है उसको इजी वे में अप्रोच कर सकते हैं। अनपब्लिश डाटा के हवाले से, ग्रे लिटरेचर के हवाले से एक बहुत जबरदस्त पॉइंट मेरे ज़हन में आया है। हमारी लाइब्रेरीज भरी हुई हैं अनपब्लिश्ड डाटा की के साथ, जिसको हम ग्रे लिटरेचर भी कहते हैं। वो कितने बच्चे हैं जो बीएस लेवल पे या एमफिल लेवल पे पब्लिकेशन की तरफ जाते हैं? मेरा ख्याल कोई 5% 10% होते होंगे। और हमारे थीसिस भरे हुए हैं, हमारी लाइब्रेरीज भरी हुई हैं उन थीसिस के साथ जो अनपब्लिश्ड डाटा है। तो हम बीइंग रिसर्च टीचर अपने जो नए बच्चे हैं रिसर्च वाले, उनको बहुत सारा बड़ा जबरदस्त रिसर्च का टास्क दे सकते हैं। हम उनको ये कह सकते हैं कि आप जाके लाइब्रेरीज में देखें कि वो कौन कौन से एरियाज हैं जिनको कवर किया गया है, जिनको स्टडी किया गया है। हम रिसर्च गैप बनाने के लिए बहुत सारे निग्लेक्टेड एरियाज को देखने के लिए उनको भेज सकते हैं कि आप एक असाइनमेंट बना के लाएं, देखें कौन कौन से एरियाज को एड्रेस किया गया है, टैप किया गया है, और कौन से जो हैं वो निग्लेक्टेड एरियाज हैं। इसके अलावा उनको कहा जा सकता है कि उनके मेथड सेक्शन को आप डिटेल में पढ़ें और देखें कि उन्होंने किस तरह से सिनॉप्सिस बनाया, मेथड में कौन कौन सा रिसर्च डिजाइन यूज किया, सैम्पलिंग टेक्निक कौन सी यूज की। ऐसा बहुत सारा टास्क उनको दिया जा सकता है, जिसके साथ ये होगा कि हमारा अनपब्लिश्ड जो लिटरेचर है, ग्रे लिटरेचर है, उससे बच्चे बहुत सारा कुछ सीख सकते हैं। सोर्सेज ऑफ अनपब्लिश्ड डाटा। अब अनपब्लिश्ड डाटा जो है कि कहाँ से मिलता है? ऑटोबायोग्राफीज है, बायोग्राफीज है दैट आर नॉट पब्लिश्ड, डायरीज, मैन्युस्क्रिप्ट्स, डाटा फ्रॉम एन अनपब्लिश्ड स्टडी, लेटर्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स in preparation, memos, and data available with scholars and research workers. Data types by nature, qualitative and quantitative data. Qualitative data are mostly non-numeric, और इसको आप किस सूरत में ले सकते हैं? वर्ड्स और सेंटेंस की सूरत में आपको मिलता है। इसके अलावा
Such data captures feelings, emotions, subjective perception of something. एड्रेस क्वालिटेटिव डाटा एड्रेस हाउ एंड व्हाई। जब हम हाउ और व्हाई की बात करते हैं तो आप किसी की चीज की डेप्थ में जब जाते हैं तो वो क्वालिटेटिव डाटा आपको ओपन एंडेड क्वेश्चंस की सूरत में रिप्लाई मिलता है, पैसेज और सेंटेंस की सूरत में रिप्लाई मिलता है, और हाउ और व्हाई को जब आप क्वेश्चन करते हैं। इसके अलावा क्वालिटेटिव क्वेश्चंस आर ओपन एंडेड, दैट्स व्हाई ओपन एंडेड होंगे। आप हाउ और व्हाई की बात करेंगे तो आपको पैसेज की सूरत में जवाब मिलेगा। क्वालिटेटिव मेथड्स इंक्लूड फोकस ग्रुप डिस्कशंस एंड इन डेप्थ इंटरव्यू। इन डेप्थ इंटरव्यू और फोकस ग्रुप डिस्कशन ऐसे मेथड हैं जो क्वालिटेटिव रिसर्च में यूज होते हैं और डाटा की डेप्थ में जाने के लिए आपके लिए बहुत अप्रोप्रिएट मेथड्स हैं। डाटा एनालिसिस जो है इसके लिए NVivo सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है। NVivo सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर irrelevant data reduction, categorizing and making it sense for research framework. लाइक आप जब किसी खास पर्टिकुलर थीम के अकॉर्डिंगली डाटा एनालाइज कर रहे होते हैं तो NVivo एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपका रेलिवेंट थीम के अकॉर्डिंगली जो भी डाटा होता है उसको जनरेट करके ऊपर ले आता है, और इसके अलावा जो डाटा होता है डाटा रिडक्शन की सूरत में उसको एलिमिनेट कर देता है। Next is quantitative data. Quantitative data is numerical in nature and can be statistically computed. And quantitative data measures uses different scales. जब आप स्केल्स में SPSS इसके लिए डाटा एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है। SPSS इज यूज्ड एज मेजरमेंट टूल और सॉफ्टवेयर। जब आप SPSS में डाटा को एंटर करते हैं तो वहां आपके पास स्केल्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंगली आप डाटा न्यूमेरिक फॉर्म में एंटर कर सकते हैं। रिसर्च के स्कॉलर्स को बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि स्केल्स जो हैं 4 टाइप्स के होते हैं, और लेकिन जब SPSS में आप जाते हैं तो आपको उसकी 3 टाइप्स मिलती हैं। अगर तो डाटा आपका कैटेगोरिकल हो तो आप नॉमिनल स्केल में ऐड करते हैं उस डाटा को न्यूमेरिक फॉर्म में, और उसके बाद ऑर्डिनल है, और फिर बाद में इंटरवल एंड रेशियो है। इंटरवल और रेशियो को जब SPSS में कैटर किया जाता है तो इनके लिए इंटरवल और रेशियो बोथ के लिए सिर्फ एक स्केल का लफ्ज यूज किया जाता है और डाटा को एंटर किया जाता है। The 5 W's of data collection in research. The 5 W's of data collection are what data is to be collected. Data असल में by nature क्या होना चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। जब आप what का क्वेश्चन करते हैं तो आप पर्टिकुलरली क्या चाह रही हैं कि आपके पास किस तरह का डाटा है। डाटा फीलिंग्स की सूरत में होगा, डाटा न्यूमेरिक की सूरत में होगा, डाटा आपकी ऑब्जर्वेशन की सूरत में होगा, किस टाइप का आपका डाटा होगा, क्वालिटेटिव होगा, क्वांटिटेटिव होगा, व्हाटएवर। ये सारा जब वर्ड का क्वेश्चन होता है तो आप इस डेप्थ में जाते हैं। फ्रॉम होम डाटा इज टू बी कलेक्टेड। फ्रॉम होम का मतलब ये है कि वो पर्टिकुलरली पर्सन कौन है जिससे आपने डाटा कलेक्ट करना है। लाइक आपने किस पॉपुलेशन को टैप किया है, उस पॉपुलेशन में से आपने कौन सा सैंपल लिया है, आपका एरिया क्या है जहां से आप डाटा कलेक्ट करना चाह रहे हैं। लाइक आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से, आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो हाउसवाइफ से, वर्किंग वुमेन से, फर्स्ट टाइम मदर से। फ्रॉम होम डाटा इज टू बी कलेक्टेड, इसका मतलब ये हुआ who will collect the data? डाटा कलेक्ट कौन करेगा? रिसर्चर कलेक्ट करेगा या उसका कोई असिस्टेंट कलेक्ट करेगा? फ्रॉम वेयर द डाटा विल बी कलेक्टेड। अब सवाल ये है कि वो पर्टिकुलर वो कौन सी प्लेस है जहां से डाटा कलेक्ट किया जाएगा। क्या आपको कोई ऐसा एरिया आपने टच किया है जिससे पर्टिकुलरली किसी इदारे से आपको डाटा मिलेगा? आप डोमेस्टिक वायलेंस को टच करना चाह रहे हैं क्या? आपको दारुल अमान से डाटा लेना है? आप किसी ट्रॉमा सर्वाइवर को स्टडी करना चाह रहे हैं, क्या वो डाटा आपको किसी हॉस्पिटल से मिलेगा? फ्रॉम वेयर द डाटा विल बी कलेक्टेड का मतलब ये है कि जब आप पर्पसिव सैम्पलिंग टेक्निक के थ्रू डाटा कलेक्ट करने के लिए निकलते हैं तो आपको एक खास इदारे के रेफरेंस से वो लोग एक ही छत तले मिलते हैं जिनके लिए आपको डाटा कलेक्ट करना है। when is the data collected?
वो अप्रोप्रिएट टाइम क्या है जब आपने डाटा कलेक्ट करना है। आपको अगर ये ज़हन में हो तो एथिकल कंसिडरेशन में पर्टिकुलरली हमने ये देखा लिखा होता है कि हमने डाटा अपने पार्टिसिपेंट की कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली डाटा कलेक्ट किया है। व्हेन इज द डाटा कलेक्टेड, ये नहीं कि आप पेशेंट के पास गए हैं डाटा कलेक्ट करने, पेशेंट स्टेबल नहीं है और हम कह रहे हैं नहीं जी नहीं हमारा पहले क्वेश्चन फिलअप करवा दो, नहीं। वो अप्रोप्रिएट टाइम क्या है जब आप डाटा कलेक्ट करना चाह रहे हैं। Okay, it was the part 1 and now this is the part 2 based on population, sampling, sampling frame, sampling technique. These are some terminologies to introduce you. Population element, sample, sample size, sampling unit, sampling frame, sampling error, representative, generalized, and applicable sample sampling techniques. First of all, population. Population is the entire group that you want to draw conclusion about. Population is the entire group that you want to draw conclusion about. Like आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को स्टडी करना चाह रहे हो और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के मुतालिक कोई भी फाइंडिंग्स आप किस तरह से उनको स्टडी करोगे, किसी टॉपिक के अंडर आप उनको स्टडी करना चाहते हो तो आप उस पॉपुलेशन से कुछ सैंपल लोगे, क्योंकि आप पूरी पॉपुलेशन को कैटर नहीं कर सकते अपनी रिसर्च में। आप उनसे सैंपल लोगे और फिर उस सैंपल को स्टडी करोगे। दिस इज इन जनरल डिस्कशन लाइक पॉपुलेशन और सैंपलिंग का आपस में रब्त क्या है। तो उस पॉपुलेशन की एक जो सैंपल लोगे, सैंपल को स्टडी करके सैंपल की जो फाइंडिंग्स होंगी उनको जनरलाइज करोगे और कहोगे कि ये पर्टिकुलर जो फाइंडिंग है ये उस पॉपुलेशन की है। दिस इज द सिंपल सिनेरियो। लाइक इसमें पॉपुलेशन में 14 अगर मेंबर्स हैं तो सैंपल में यहाँ पे 5 है। तो एलिमेंट क्या है कि एन एलिमेंट इज द सिंगल मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन। हर 14 में से हर एक बंदा जो है वो पॉपुलेशन का एक एलिमेंट कहलाएगा और टोटल मेंबर्स जो हैं वो पॉपुलेशन होंगे। इसी तरह से सैंपल में 5 मेंबर्स हैं तो 5 मेंबर्स में से हर एक जो है वो सब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, दूसरे मानों में सैंपल का एक यूनिट होता है और एक पॉपुलेशन का यूनिट होता है। जो पॉपुलेशन का यूनिट है वो एलिमेंट कहलाएगा और जो सैंपल का यूनिट है वो सब्जेक्ट कहलाएगा। नेक्स्ट इज a sample is a subset of the population. It comprises some members from it. Like आपको a sample is thus a subgroup, a subset of the population. By studying a sample, the researcher should be able to draw conclusions that are generalizable to the population of interest. आपको वही वाली बात कि आपको सैंपल में से एक कंक्लूजन ड्रॉ करना है और उसको जनरलाइज करना है पॉपुलेशन के ऊपर। लाइक आपके पास एक हॉस्पिटल में टारगेट आपको ये मिला है कि जी आपने पेशेंट्स का सेटिस्फेक्शन लेवल जो है उसको चेक करना है और आपके पास पूरे हॉस्पिटल में 145 पेशेंट्स हैं और 145 पेशेंट्स हो सकता है आपके पास 10 वार्ड में 145 पेशेंट्स हैं। 10 वार्ड में से हर वार्ड में आप 4 ले लेते हो पेशेंट्स और आपके पास टोटल 40 का सैंपल होगा और 40 के सैंपल से जब आप पेशेंट्स की सेटिस्फेक्शन का क्वेश्चनियर फिलअप करवाओगे तो आप इस नतीजे पे पहुंचोगे कि क्या वहां का हॉस्पिटल के डॉक्टर्स जो हैं अपने पेशेंट्स को सेटिस्फाइड कर पा रहे हैं या नहीं पा रहे। तो ये जो कंक्लूजन होगा, ये जो फाइंडिंग होगी, ये टोटल हॉस्पिटल की फाइंडिंग होगी कि सच एंड सच हॉस्पिटल एबीसी वटएवर जो भी है उनके पेशेंट्स जो हैं वो इनकी ट्रीटमेंट से सेटिस्फाइड है। नेक्स्ट इज सैम्पलिंग यूनिट दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू के जो सैम्पलिंग यूनिट होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। सैंपल का एक बंदा जो है वो सब्जेक्ट या यूनिट कहलाता है और पॉपुलेशन का एक मेंबर जो है वो एलिमेंट कहलाता है। नेक्स्ट इज सैम्पलिंग एरर।
Sampling error is a statistical error that occurs when an analyst does not select a sample that represents the entire population of the data. इसकी तस्वीर अगर देखी जाए तो ये बड़ा जबरदस्त एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही है ऑड वन आउट का, कि जब हम अपने इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए किसी ऐसे मेंबर को, पार्टिसिपेंट को ऐड कर लें जो आपके इंक्लूजन क्राइटेरिया में नहीं आता, तो वो आपका एरर होगा। या अगर एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में जो आता है उसको ऐड कर ले जो वहां पे रिक्वायर्ड ही नहीं था, तो वो भी आपका एक एरर होगा। अब हम थोड़ा सा सैम्पलिंग एरर के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। Sampling error in research refers to the discrepancy between the characteristics of the sample and characteristics of the population from which the sample is drawn. यानी आप किसी ऐसे बंदे को एज सैंपल ले लो जिसकी करैक्टरिस्टिक्स वो ना हो जो आपकी होल पॉपुलेशन की है। अगर वो बंदा पर्टिकुलर लाइक आपने यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स टैप किया था ना, और वो स्टूडेंट है किसी कॉलेज का, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका तो सैम्पलिंग एरर आ जाएगा। या किसी एकेडमी का यूनिवर्सिटी, तो उसने ज्वाइन ही नहीं की हुई, तो ये आपका सैम्पलिंग एरर होगा। लाइक आप अगर किसी को स्टडी करना चाह रहे हो, फर्स्ट टाइम मदर्स को, फर्स्ट टाइम मदर्स यानी उनका पहला बेबी हो, और आपने उनमें से 10-12 ऐसी खवातीन भी ले ली हैं जो फर्स्ट टाइम मदर्स नहीं है, सेकंड टाइम मदर्स हैं, थर्ड टाइम मदर्स हैं, तो वो चीज आपकी सैम्पलिंग एरर में इंक्रीज करेगी। It is the error that arises due to observing sampling instead of the whole population and can affect the accuracy and validity of the research findings. Sampling error can occur due to several factors. अब किन-किन वजूहात की बिना पर sampling error हो सकता है? सैम्पलिंग एरर आपका राइज हो सकता है सैम्पलिंग साइज की वजह से। स्मॉलर सैंपल sizes are more likely to produce larger sampling errors because they are less likely to accurately represent the population. जब आप अपना सैंपल साइज बहुत छोटा ले लेंगे, तो जितना सैंपल छोटा लेते जाएंगे वो रिप्रेजेंटेटिवनेस जो है उस सैंपल की कम होती जाएगी। जब सैंपल की रिप्रेजेंटेटिवनेस ही कम होती जाएगी, तो ऑब्वियसली सैम्पलिंग एरर बढ़ता जाएगा, एक्यूरेसी कम हो जाएगी। सैम्पलिंग मेथड, द मेथड यूज्ड टू सिलेक्ट द सैंपल कैन इंट्रोड्यूस एरर। लाइक आप अगर कन्वीनियंस सैंपल लेती हैं, ठीक है, कन्वीनियंस सैंपल वो होता है जो रिसर्चर को कन्वीनियंट रखता है। जब आप कन्वीनियंट अपनी कन्वीनियंस देखेंगे और रिसर्चर कन्वीनियंस सैंपल लेगा, तो उसकी एक्यूरेसी कम होगी और फाइंडिंग की, बिकॉज वो रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं होगा ना आपकी पॉपुलेशन का। नेक्स्ट है पॉपुलेशन वेरिएबिलिटी। इफ द पॉपुलेशन इज हाईली डाइवर्स, even a well chosen sample may not capture Excuse me, all ma'am. जी जी Sorry for disturbance, ma'am. Slides kindly मैम शेयर कर दीजिएगा, चेंज कर दीजिएगा, वो चेंज नहीं हो रही हैं स्लाइड्स। ये आई सैम्पलिंग थिंक एरर स्टक हो गया। नहीं, स्टक नहीं हो गया, सैम्पलिंग एरर के ऊपर ही मैं बात कर रही हूँ। ये नेक्स्ट स्लाइड है, अभी मैं इस जी पे जी नहीं। मैम, ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू मैम। पॉपुलेशन की डाइवर्सिटी जितनी ज्यादा होगी, सैंपल जितना भी आप मुहतात तरीके से लेंगे, उसकी डाइवर्सिटी की वजह से एरर जरूर आपका आएगा। रिस्पॉन्स बायस, डिफरेंसेस in who chooses to respond or how they respond can introduce error, particularly if certain segments of the population are more likely to respond than others. Sometimes ऐसा होता है कि हम सैंपल ले लेते हैं और उस सैंपल में आपकी एज रेंज बहुत ज्यादा है। आपने सैंपल ले लिया है, जनरल पॉपुलेशन के लिए स्केल डेवलप कर रहे हैं, और सैंपल आपका है 18 से 18 to 59 ईयर्स।
अब इसमें 18 to 30 40 तो बहुत सारा सैंपल है, लेकिन 40 से ऊपर जो आपका 59 वाले 19 साल है, उनमें से हार्डली आपने 10 या 12 लोगों को लिया हुआ है। ये चीज भी सैम्पलिंग एरर क्रिएट करती है। मेजरमेंट एरर, data is measured or recorded can also contribute to sampling error. मेजरमेंट एरर में इनएक्यूरेसीज के आपने अपने डाटा को एनालाइज करते हुए कुछ ऐसे ब्लंडर्स किए हैं या एरर्स किए हैं जो आपकी एक्यूरेसी और फाइंडिंग्स को हर्ट करेंगे। अब ये है कि टू मिनिमाइज द सैम्पलिंग एरर, किस तरह से आप अपना रिसर्चर जो है सैम्पलिंग एरर को रिड्यूस कर सकता है। सबसे पहले तो ये कि सैंपल साइज जो है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए। बहुत ज्यादा छोटा सैंपल जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। उसके अलावा अपनी सैम्पलिंग टेक्निक जो है कन्वीनियंस सैम्पलिंग को अवॉइड करें। उसके अलावा आप अपना जो स्टैटिस्टिकल मेथड है एनालिसिस का वो बहुत ही अप्रोप्रिएट लें, और इस वजह से आपके जो सैम्पलिंग एरर है वो रिड्यूस होंगे और रिसर्च की एक्यूरेसी और वैलिडिटी जो है वो इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट इज सैम्पलिंग फ्रेम। अब सैम्पलिंग फ्रेम जैसा कि आपको इसका इसका पिक्टोरियल जो प्रेजेंटेशन है उसके अंदर ये चीज दिख रही है कि पॉपुलेशन और सैंपल, पहले तो हमने ये दो टॉपिक्स कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। पॉपुलेशन और सैंपल के दरमियान एक सैम्पलिंग फ्रेम ऐसी चीज है जो आप अपनी कन्वीनियंस के लिए बना लेते हो। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे सोर्सेस लिमिटेड होते हैं, हम अपने आप को इतना ज्यादा ना आपके पास टाइम होता है ना आपके पास सोर्सेज होते हैं कि आप मैक्सिमम पॉपुलेशन को टच कर सको। फिर आप अपने लिए एक सैम्पलिंग फ्रेम बनाते हो कि जी इस एरिया में से, इस शहर के सिर्फ इस एरिया से मैं अगर डाटा ले लूं दैट विल बी मोर सफिशिएंट। फिर आप पर्टिकुलरली इसी तरह से सैम्पलिंग फ्रेम में कुछ चीजें जो हैं उनको स्क्रूटनाइज कर लेते हो और उसके अंदर से फिर सैंपल ले लेते हो। सैम्पलिंग फ्रेम एक्चुअली पॉपुलेशन से ही होता है, लेकिन वो सैम्पलिंग फ्रेम टोटल आपका सैंपल नहीं होता, आपने फर्दर उसमें से सिलेक्ट करके अपना सैंपल लेना होता है। representative sample अब क्या होता है? A representative sample is a small subset group that seeks to proportionally reflect specified characteristics exemplified in the target population. In short, in as thumb sign you can say पॉपुलेशन की जितनी करेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारी अगर सैंपल कैटर करता है, टैप करता है, तो आपका सैंपल रिप्रेजेंटेटिव है, और अगर नहीं करता तो आपका सैंपल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। अगर आप इसी तस्वीर को देखें तो इन्होंने एरोस दिए हुए हैं। अगर हर कलर के बंदे को यहाँ से एक एक को कलेक्ट करके रिप्रेजेंटेटिव बनाया हुआ है पॉपुलेशन का, और अगर इसमें से ब्रिक कलर जो है उसको आउट कर दिया जाए या ग्रे कलर को आउट कर दिया जाए, मींस के जो ग्रे कलर की यहाँ कवरेज है पॉपुलेशन की उसको तो कोई भी रिप्रेजेंट नहीं करेगा ना। तो जब आप हर तरह के लोगों को कैटर करना चाह रहे हैं तो फिर ही आपका सैंपल जो है रिप्रेजेंटेटिव होगा, और फिर ही आप उसकी फाइंडिंग्स को जनरलाइज करके कह सकेंगे कि इस सैंपल की जो फाइंडिंग्स हैं वो इस पॉपुलेशन की फाइंडिंग्स है, वो जनरलाइजेबल होगा। अगर सैंपल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो वो जनरलाइजेबल भी नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सैंपल। अब बहुत अच्छा सैंपल कौन सा होना चाहिए? जो बहुत रिप्रेजेंटेटिव हो, एब्सेंस ऑफ सैम्पलिंग एरर हो, जनरलाइजेबल हो, गोल ओरिएंटेड हो, प्रोपोर्शनल हो, रैंडमली सिलेक्टेड हो, एक्चुअल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर हो और प्रैक्टिकल। डिटरमिनिंग द सैंपल साइज। अब बात ये है कि अभी हमने बात की कि अगर सैंपल साइज बहुत छोटा होगा तो सैम्पलिंग एरर अकर करेगा। अगर सैम्पलिंग साइज बहुत छोटा होगा तो सैम्पलिंग एरर अकर करेगा। फिर सैंपल कितना होना चाहिए? तो इस बात का फैसला करने के लिए कि फिर सैंपल कितना होना चाहिए, इसके लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, एक कैलकुलेटर है, ये फ्री टू डाउनलोड है, इसको जी पार कैलकुलेटर कहते हैं।
ये आपसे पर्टिकुलर 3-4 चीजें वैल्यूज मांगता है और उसके बाद आपको आपका जो पर्टिकुलर सैंपल साइज है वो बता देता है। लाइक आपको इसकी इनपुट में क्या चीज देना है, आपको अपना मार्जिन ऑफ एरर बताना है, कॉन्फिडेंस लेवल बताना है और एक्सपेक्टेड वेरिएंस बताना है और फाइनलाइज करता है ये आपके सैंपल साइज को। और एक यहाँ पे बड़ी पते की बात ये है कि जी पार में जब आप सैंपल लेते हो तो एकदम रिसर्चर बड़ा राजी हो जाता है कि जब ये इसको आप रन करते हो, ये सारी वैल्यूज इनपुट दे के ये आउटपुट आपको देता है। बड़ा सिंपल सा बड़ा छोटा सा सैंपल साइज आ जाता है और आप बड़े खुश हो जाते हैं कि जी ओ वाओ, ये तो इतने थोड़े लोगों के ऊपर भी रिसर्च हो सकती है। तो ये बात ज़हन में रखिएगा कि जी पार कैलकुलेटर आपको वो मिनिमम लेवल बताता है कि आप कम से कम इतना सैंपल ले सकते हैं। ये हार्ड एंड फास्ट बात नहीं होती जी, जो जी पार ने कह दिया तो आप बस इससे ज्यादा नहीं ले सकते। जी बार आपको एक लोअर लिमिट बताएगा कि आप कम से कम इतना सैंपल लेके तो ये रिसर्च कर लेंगे तो आपका अप्रोप्रिएट आ जाएगा और आपका जो आपने सेलेक्ट किया मार्जिन एरर का उसको देखते हुए, कॉन्फिडेंस लेवल को देखते हुए और जो आपने वेरिएंस वहां पे सेट किया है, इन 3-4 चीजों को देखते हुए जो आपका सैंपल साइज डिटरमिन वो करेगा, वो आपको लोअर लिमिट बताएगा कि कम से कम आप इतने लोगों के ऊपर ये रिसर्च कर सकती हैं। उससे ज्यादा अगर आप सैंपल लेना चाहते हैं तो कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन कम से कम उससे कम आप ना लें ताकि आपका सैंपलिंग एरर जो है वो ज्यादा ना हो जाए। ओके, अब हम बात करेंगे सैंपलिंग टेक्निक्स पे। अब वो कौन सी सैंपलिंग टेक्निक्स हैं जिनको आप यूज करें और आपके सैंपलिंग एरर भी कम आए और आपके रिसर्च की एक्यूरेसी भी आ जाए और आपकी फाइंडिंग जो है वो वैलिड भी हो जाए। सैम्पलिंग techniques are divided into two parts, that is probability sampling and non-probability sampling. Probability sampling is again divided into four parts and non-probability sampling is again divided into four parts. This is the pictorial representation of sampling. First of all, we will discuss probability sampling. Probability sampling क्या होती है? Probability sampling एज थम साइन आप ये जहन में रखिए कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग वो सैंपलिंग होती है, टेक्निक्स होती हैं जब आपके पास पूरी पॉपुलेशन नाउन हो। और जब आपके पास पॉपुलेशन नाउन नहीं होती तो वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है, जो यूजुअली हम लोग अपने थीसिस में स्टूडेंट्स को रिकमेंड करते हैं। लेकिन अभी हम जो डिस्कस करने चाह रहे हैं दैट इज प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, जिसमें टोटल पॉपुलेशन नाउन होती है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपका सिंपल रैंडम सैंपलिंग होती है। इसमें जो इसकी कंडीशंस हैं वो है कि एवरी मेंबर हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, जो सैम्पलिंग फ्रेम इज इक्वल टू होल पॉपुलेशन। कोई ऐसी बात नहीं होती, जैसे मैंने आपको पहले कहा था जी, पॉपुलेशन और सैंपल के दरमियान एक सैम्पलिंग फ्रेम होता है जो आप अपने लिमिटेड सोर्सेज की वजह से टैप कर लेते हैं कि ये एरियाज या ये लोग जो हैं इनके अंदर से हम अपना सैंपल निकाल लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। इनकी होल पॉपुलेशन ही आपका सैम्पलिंग फ्रेम होता है। रैंडमाइजेशन मेथड यूज किया जाता है और रैंडम नंबर जनरेटर यूज किया जाता है। लाइक आपके पास पॉपुलेशन 1000 की है, आपकी पॉपुलेशन नाउन है, आपको 1000 लोग हैं। 1000 लोगों में से अगर आपने 100 का सैंपल जनरेट करना है तो सिंपल 1 से लेके 1000 तक सीरियल नंबर लगे हुए होंगे उनको, और उसमें से 100 का सैंपल जब आप जनरेट करेंगे अपने जनरेटर के साथ, रैंडम नंबर जनरेटर के साथ, तो वो रैंडमली उसमें से 100 लोगों को निकाल लेगा। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो है ये आपको सामने नजर आ रही है। इसका प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का फर्स्ट जो पार्ट है दैट इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सेकंड इज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग।
individuals are chosen at regular intervals. Like इसमें आपको फिर वही बात के पॉपुलेशन आपकी 9 है, 1000 के 1000 बंदों को आप जानते हैं, आपने सैंपल लेना है उसमें से 100 का। तो सिस्टमैटिक सैंपलिंग में क्या होगा, सबके ऊपर टैग लगे हुए हैं सीरियल नंबर के, और आपने रेगुलर इंटरवल के हिसाब से रैंडमली पहला बंदा चूज करना है। लाइक 6 से आप स्टार्ट करते हैं, 6 से स्टार्ट करते हैं तो हर 10वां बंदा, ठीक है, जब आपने 100 का सैंपल लेना है, 1000 आपके पास पॉपुलेशन है, तो ऑटोमेटिकली 6 से शुरू करेंगे, 6, 16, 26, 36 इस तरह से करके आप चलते जाएंगे, तो हर 10वां बंदा यानी आपका जो इंटरवल होगा वो 10 का होगा। तो आपके पास 100 मेंबर्स आ जाएंगे और इसको आप कहेंगे सिस्टमैटिक सैंपलिंग। ठीक हो गया। नेक्स्ट है स्ट्रेटाफाइड सैंपलिंग। स्ट्रेटाफाइड सैंपलिंग, स्ट्रेटा का लफ्ज जो है मीनिंगफुली इसको आप इस तरह से लें, लाइक सब ग्रुप, स्ट्रेटा कहते हैं सब ग्रुप को। डिपेंडिंग पॉपुलेशन इन सब ग्रुप्स, आप ये देखें कि आप अपनी पॉपुलेशन को अगर सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं तो एवरी सब ग्रुप properly representative the sample. Every subgroup must be properly represent the sample. सब ग्रुप्स बेस्ड किस पे करते हैं, आप जेंडर पे बेस कर लें, एज रेंज पे कर लें, इनकम ब्रैकेट पे कर लें, जॉब रोल पे कर लें, लेकिन आपके जो सब ग्रुप्स होंगे वो किसी ना किसी चीज के साथ टैग होंगे, कंडीशन होंगे। लाइक आपने फिर वही बात कि हम बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की, जिसमें आपको पॉपुलेशन नाउन है, पॉपुलेशन वही 1000 वाली है, लेकिन आपने क्या किया है, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग करनी है। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग मैंने आपको कहा है, स्ट्रेटा कहते हैं सब ग्रुप को, और जो सब ग्रुप है वो कंडीशन होगा किसी ना किसी चीज के साथ, जेंडर के साथ, एज रेंज के साथ, इनकम ब्रैकेट, जॉब रोल या किसी भी चीज के साथ। और अभी हम जो कर रहे हैं वो हमने किया है जेंडर के साथ। लाइक आपके पास पॉपुलेशन है 1000 की और आपको 100 का सैंपल लेना है, और आपको पहले से ये पता है कि आपकी पॉपुलेशन में मेल 200 है और फीमेल 800 है। ऑब्वियसली आप जब इस रेफरेंस के साथ अपना स्ट्रेटा को देखते हुए सैंपल लोगे तो 20 मेंबर्स विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम मेल एंड 8 पार्टिसिपेंट विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम फीमेल। तो टोटल आपका हो 80 मेंबर्स विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम फीमेल। 20 और 80 को जब प्लस करेंगे दैट विल बी 100। नेक्स्ट इज क्लस्टर सैंपलिंग। क्लस्टर सैंपलिंग किस तरह की होती है कि पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इन सब ग्रुप्स बट ईच सब ग्रुप हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। लाइक आप ये समझती हैं कि एक कंपनी है जिसके ऑफिसेस पूरे पाकिस्तान में है, पाकिस्तान की 10 उसमें सिटीज में है, और उस कंपनी ने अपना एनुअल प्रोडक्शन रेट लेना है और उसने रिव्यू करना है, क्वालिटी एनहांसमेंट अपनी करनी है। तो वो क्या करेगा कि जब वो दे देखेगा कि मैं 10 सिटीज में पूरे पाकिस्तान के नहीं जा सकता, तो वो सिलेक्ट करेगा कि मैं किसी 3 या 4 में चला जाता हूँ। क्लस्टर सैंपलिंग ये है कि वो किसी 3 या 4 को सिलेक्ट करेगा, बट इट डिपेंड्स कि वो ऑफिस जो है उन सब के एक जैसे वर्कर हों, एक जैसे इंसेंटिव्स हों और एक जैसे उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन हो। फिर आप कह सकते हैं कि जी मैं किसी 10 में से किसी 3 को या 4 को स्टडी कर लेता हूं, तो जो मेरी फाइंडिंग्स आएंगी वो एक्यूरेट होंगी। दैट इज क्लस्टर सैंपलिंग। Now we will move ahead towards non-probability sampling. Non-probability sampling में non-probability sampling टेक्निक वो होती है जिसमें आपके पास पॉपुलेशन नाउन नहीं होती, और हम मोस्टली नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स ही अपने रिसर्च और थीसिस में बच्चों को रिकमेंड करते हैं। और इसकी जो कंडीशंस होती हैं, सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन नॉन रैंडम criteria. Every individual has not equal chance of being selected. Sampling bias इसी वजह से ज्यादा होता है. Findings about population and generalizability may be weaker.
क्योंकि रिप्रेजेंटेटिवनेस नहीं होती उसमें, बिकॉज होल पॉपुलेशन इज नॉट नाउ। तो हम अपनी बेस्ट एफर्ट कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते कि हम अपना रिप्रेजेंटेटिव सैंपल बनाएं, ताकि उसकी पॉपुलेशन के ऊपर जब उसकी फाइंडिंग सैंपल की जनरलाइज करें तो उसका एक्यूरेसी का लेवल बहुत ऊपर हो। उसकी बेस्ट एफर्ट सिर्फ कर सकते हैं कि वो सैंपल जो है पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव हो, बस। इसमें फर्स्ट जो टाइप है अंडर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक, दैट इज कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जैसा कि हम पहले इसको थोड़ा सा टैप कर चुके हैं कि कन्वीनियंस सैम्पलिंग रिसर्चर अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली देखता कि मैं किस तरह से कन्वीनियंट रहूं, मेरी आसानी किस चीज में है, मैं इस तरह से कर लेता हूं। तो क्या होगा कि मोस्ट एक्सेसिबल टू द रिसर्चर, मोस्ट एक्सेसिबल टू द रिसर्चर मीन जब मोस्ट एक्सेसिबल टू द रिसर्चर होगा तो लेस रिप्रेजेंटेटिव सैंपल भी होगा, जनरलाइजेबल रिजल्ट्स नहीं होंगे, उसकी जनरलाइजेबिलिटी जो है वो स्ट्रेट पे होगी, सैम्पलिंग एरर और बायस बहुत ज्यादा हो जाएगा। लाइक यू आर गोइंग टू कंडक्ट अ रिसर्च, educational stress of university students, and you will conduct a survey and you have to collect the data in the form of opinion। आप जब सर्वे की सूरत में बहुत सारे लोगों की ओपिनियन को लोगे तो आप क्या करते हो कि बीइंग स्टूडेंट और रिसर्चर आप अपनी कन्वीनियंस ये देखते हो कि जी आप 4 या 6 लेक्चर लेते हो और हर लेक्चर के बाद यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो है हर आखिरी 10 मिनट में अपना क्वेश्चनियर दो और वो फिलअप करवा। तो क्या जो आप 4 लेक्चर लेते हो, क्या उन्हीं बच्चों से अगर आप अपना क्वेश्चनियर फिलअप करवा लेते हो तो किस तरह आप ये कह सकते हो कि यही 4 क्लासेस जो थी ये यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रही हैं? तो आपने तो अपनी कन्वीनियंस देखी। तो ये कन्वीनियंस सैंपल है और इसको जो रिजल्ट्स होते हैं वो कंप्रोमाइजिंग ही होते हैं। अब अगला जो है वो पर्पसेस सैंपलिंग टेक्निक है, जिसको जजमेंटल सैंपल भी कहते हैं। Researchers select the sample according to the purpose of the research। Purpose of the research particularly क्या है कि आपका inclusion और exclusion criteria होता है, जिसको follow करते हुए वो researcher जो है इसको collect करता है sample को, observer bias को avoid करता है। उसके अलावा इसके बाद जो है बेस्ट एफर्ट करता है कि सैम्पलिंग टेक्निक उसकी अप्रोप्रिएट जो है, इसके साथ उसका जो रिजल्ट की एक्यूरेसी है वो बेहतरीन हो। लाइक वी आर गोइंग टू कंडक्ट अ रिसर्च दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस एंड डिसीजन मेकिंग इन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, and your inclusion criteria will be 18 to 20 years of the students will be included in the study। Both male and female students will be included in the study। Both public and private institution students will be included in the study। ये आपका हो गया inclusion criteria। अब exclusion criteria आप क्या लेते हो कि students having some mental health problem, diagnosed mental health problem will not be included in the study। Students having diagnosed physical health problem will not be included in the study। अब एक चीज आप और ये करते हो कि आप अपने डिसीजन मेकिंग को इन व्यू रखते हुए आपने एक चेक लगाया है, एक स्क्रीनिंग लगा दी है कि ऐसे बच्चे जिनका आईक्यू लेवल जो है बिलो एवरेज होगा उनको मैं अपनी स्टडी में शामिल नहीं करना चाहता, तो आपने उसको एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में डाल दिया। अब उसके लिए आपको पहले स्क्रीनिंग के तौर पे आईक्यू टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा। उस आईक्यू टेस्ट के अकॉर्डिंगली जिन बच्चों का अबव एवरेज आईक्यू होगा उनको आप उसमें कैटर करेंगे अपनी स्टडीज में। Okay, that was the purposive sampling technique example। Next is snowball sampling। Snowball sampling if the population is hard to access। ऐसी population जिसको अप्रोच करना मुश्किल हो, we start from 1% to more person। लाइक कैसी पॉपुलेशन हो सकती है जिसको अप्रोच करना बहुत मुश्किल है? ऐसी पॉपुलेशन समटाइम्स आपने जेंडर आइडेंटिटी पे बात करनी है, ये बहुत ही
टैबू समझा जाता है, अपनी आइडेंटिटी कम लोग शो करते हैं, या आपने होमलेस पीपल के ऊपर स्टडी करनी है, तो किसी एक होमलेस पर्सन के साथ आप बात करेंगे, एक पर्सन से स्टडी स्टार्ट करेंगे, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे की तरफ, और इसी से आपको पता चलेगा कि स्नोबॉल टेक्निक या स्नोबॉल सैम्पलिंग एज द वर्ड शोज कि स्नोबॉल बनता है, वो चेन बनती है एक, जैसे कि आपको इस पिक्चर में भी दिखाई दे रही होगी, ये एरोस आपको बताते हैं कि एक पर्टिकुलर बंदा जिससे आपने रिसर्च स्टार्ट की थी जो ब्लू कलर में है, यहाँ से ये आपका फर्स्ट पर्सन था जिसने स्नो बॉलिंग के अकॉर्डिंगली आपको डाटा दिया और उसने बता दिया आगे नेक्स्ट ग्रीन वाले का, फिर ब्लैक का, फिर आगे इसी तरह से। तो ऐसे कौन सी पॉपुलेशन है जिसको अप्रोच करना मुश्किल होता है, लाइक अडॉप्टेड चिल्ड्रन, डिवोर्स्ड लेडीज, सेक्सुअल हरासमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस पे बात करना, ये सारे वो चीजें हैं जिस पे लोग खुल के बात नहीं करना चाहते, लेकिन अगर आप उस पर डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं तो फिर आपको स्नोबॉल टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है जी कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग क्या होती है? कोटा सैम्पलिंग इज बेस्ड ऑन प्री डिटरमाइंड नंबर proportion ऑफ द यूनिट्स। लाइक आपको कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन ऑब्जर्व करनी है, स्टडी करनी है, कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी करना है, और आपके पास प्री डिटरमाइंड नंबर या प्रपोर्शन है। प्री डिटरमाइंड मीन आपने पहले से प्लान किया हुआ है कि आपको 100 मेंबर्स चाहिए सैंपल में, और उन 100 में से 50% विमेन होंगी और 50% मैन। विमेन और विद इन मैन आपकी जो रेशो होगी एज के हिसाब से, उसमें 30% टीन एज के होंगे, 50% अडल्ट होंगे, और 20% क्या होंगे? सीनियर सिटीजन होंगे। तो आप जब इस तरह से कैटर कर लेते हो कि जी 50 आपके पास खवातीन हो, 50 आपके पास मर्द हो, तो वो जो मर्द हो उनमें जो टीन एज के लोग हों, 15 टीन एज के हों मर्द, और 15 15 जो है वो विमेन होंगी। उसके अलावा आप एडल्ट्स लेते हो 50% और 50% को अगेन डिवाइड करते हो 25 पे, और 25 आपके मेन होंगे और 25 आपके विमेन होंगे। फिर आप सीनियर सिटीजन की तरफ आते हो और वो आपका है 20%, और 10 फिर आप उसमें से मेल लेते हो, 10 आपके फीमेल होंगे, और टोटल सम इसका होगा 100। दैट इज द कोटा सैम्पलिंग। Hope so all sampling techniques will be clear, and next we will move ahead to the part 3. Part 3 is based on tools and techniques of data collection for qualitative and quantitative research. Okay. Tools and techniques of qualitative and quantitative research. Quantitative data collection tools are surveys, experiments, observation, and qualitative data techniques are focus groups, individual in-depth interviews, observation, case studies. Okay. Now we will discuss what is the difference between tools and techniques. Tools क्या होते हैं data collection के, और techniques क्या होती हैं? Tools और techniques का जो difference है वो बहुत अच्छे से इसमें क्लियर हो रहा है। लाइक आपका टूल है क्वेश्चनियर, आपका टूल है इंटरव्यू। अब विद इन क्वेश्चनियर आप टेक्निक कौन सी यूज करेंगे? विद इन क्वेश्चनियर आप टेक्निक कौन सी यूज करेंगे? लाइक आपका क्वेश्चनियर रिटन होगा, आपका क्वेश्चनियर ओरल होगा, आपका क्वेश्चनियर क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस पे बेस कर रहा होगा, या आपका क्वेश्चनियर ओपन एंडेड क्वेश्चंस पे बेस कर रहा होगा। नेक्स्ट है इंटरव्यू। इंटरव्यू आपने अगर लेना है तो इंटरव्यू फिर फेस टू फेस है, टेलीफोनिक है, स्ट्रक्चर्ड है, अनस्ट्रक्चर्ड है, यानी कौन सी टेक्निक आप उसमें से यूज करते हो।
इट मीन्स के टूल्स के साथ जो टेक्निक्स की एसोसिएशन है वो आपकी वर्किंग को और भी रिफाइन कर देती है. नाउ वी विल go ahead in the depth of methods. First method is questionnaire. A questionnaire is a research instrument that consists of a set of questions or other types of prompts that aim to collect information from respondents. अब क्वेश्चनियर के अंदर जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो कितने अप्रोप्रिएट होते हैं, कितने आपके टॉपिक से रेलिवेंट होते हैं, उसका क्वेश्चंस जो है वो ओपन एंडेड भी हो सकता है, क्लोज्ड एंडेड भी हो सकता है. इट डिपेंड्स कि आपने वो क्वेश्चनियर अपनी क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए करना है या क्वांटिटेटिव के लिए करना है. आपका क्वेश्चनियर जो है उसके क्वेश्चन व्हाट को टैप कर रहे हैं, हाउ या व्हाई को कर रहे हैं. डिपेंड करता है कि आपने उनको ऑप्शन दी है, लिकर्ट स्केल दिया हुआ है. जैसे मोस्टली हम अपनी क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए लिकर्ट स्केल के ऊपर टैप करवाते हैं, 1 2 3 4 की ऑप्शन दे दी, 5 पॉइंट्स दे दिए. और अगर क्वेश्चनियर आपका क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए है तो उस क्वेश्चनियर के अंदर इन डेप्थ जो है ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, इन डेप्थ आपको स्टडी करनी होती है और आप वहां पे जो क्वेश्चंस कर रहे होते हैं वो हाउ और व्हाई पे बेस कर रहे होते हैं. ओके, next is observation. Observation can be direct or indirect, both. Direct observation, observing behavior as it occurs. जब कोई बच्चा बिहेवियर शो करता है एज इट इज, टीचर उसको क्लास में ऑब्जर्व कर लेती है, दैट इज डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन. Indirect observation, observing the effects or results of the behavior rather than the behavior itself. Like वो जो बिहेवियर हुआ वो टाइम गुजर चुका, लेकिन आप उसके बाकियात को ऑब्जर्व कर रहे हैं. आप देख रहे हैं कि वो बिहेवियर हुआ, गुजरे, उसको बिहेवियर को हुए, उस इवेंट को हुए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड गुजर चुका है, उसके बाद आप उसके बाकियात को स्टडी कर रहे हैं, दैट इज योर इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन. अब आप उसके बाकियात में क्या चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं? आप उसके बाकियात में चेक कर सकते हैं लाइक सिगरेट पीसेस, बेड फोल्ड, रैपर्स, हेयर डिपॉजिट और फिंगरप्रिंट्स. ये इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन की हम डिटेल में जा रहे हैं. This is the actually division of observation method. Observation method is divided into two parts: direct observation and indirect observation. And right now we are discussing indirect observation. इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के लिए आप जो चीज स्टडी कर सकते हैं वो फिजिकल ट्रेसेस है या आर्कीवल रिकॉर्ड्स हैं. फिजिकल ट्रेसेस वही वाली चीजें जो मैंने अभी आपको बताया है, बेड फोल्ड्स, रैपर्स, हेयर डिपॉजिटेड और फिंगरप्रिंट्स एक्सेट्रा. अब आर्कीवल रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? आर्कीवल रिकॉर्ड्स ये होते हैं जब कोई इंसिडेंट हुआ, उस कुएं को आपने देखना है, तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं, जैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं कि उसमें डिपेंड करता है वो इवेंट, वो जुर्म किस टाइप का था. तो आर्कीवल रिकॉर्ड में समटाइम्स पुलिस जो है हॉस्पिटल्स में जाती है, किसी इदारे में जाती है, लाइक एक पेशेंट है या एक ऐसा मेंबर है जो किसी ऑफिस का एम्प्लॉय था और उसने वो जुर्म किया, तो इन्वेस्टिगेशन में उस हॉस्पिटल या उस ऑफिस का रिकॉर्ड जो है वो शामिल होगा. उसको कहते हैं आर्कीवल रिकॉर्ड, जिसमें पर्टिकुलरली उस बंदे की प्रेजेंस का पता चलेगा कि वो बंदा उस तारीख में मौजूद था, कितनी देर के लिए मौजूद था, कब वो वहां से गया और उसने ये जो जुर्म था वो किया. लाइक आर्कीवल रिकॉर्ड्स आर द पब्लिक एंड प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स डिस्क्राइबिंग द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स, इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट्स. Records that are continuously kept and updated are referred to as running record. तो ये जो फिजिकल ट्रेस ये सॉरी आर्कीवल रिकॉर्ड्स हैं, ये रनिंग रिकॉर्ड्स होते हैं. और ये किस सूरत में होते हैं? अब
प्रॉब्लम्स ऑफ आर्कीवल रिकॉर्ड्स। आर्कीवल रिकॉर्ड्स के साथ कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। आप समटाइम्स ऐसा होता है कि इसका जो पहला प्रॉब्लम है वो है selective deposit. Researchers selective deposit occurs when some information is selected to be deposited in archives but other information is not. यानी आप जिस पर्टिकुलर चीज को स्टडी करना जा रहे हैं वो आपने इंफॉर्मेशन का बहुत ही छोटा हिस्सा स्टडी के लिए लिया, ओनली सम इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड। अगर आप इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन लेते तो शायद तब आपको वो चीज उसकी विटनेस कोई मिलती। That is another problem of archival records, and that is selective survival. Selective survival क्या होता है? Arise when records are missing or incomplete. वो पर्टिकुलर चीज जिसको आप स्टडी करने गए वो उस रिकॉर्ड से मिली नहीं। लाइक आप जिस पेशेंट का पता करने गए उस पेशेंट का तो रिकॉर्ड उनके पास था ही नहीं, ना इमरजेंसी में था, ना इंडोर में था, ना आउटडोर में था। तो ये एक सिलेक्टिव डिपॉजिट जो है ये प्रॉब्लम्स ऑफ आर्कीवल रिकॉर्ड्स में शामिल है। एक थर्ड जो इनका एरर है वो है स्पूरियस रिलेशनशिप। स्पूरियस रिलेशनशिप होता है एक फेक रिलेशनशिप बना लेना किसी चीज का। A spurious relationship exists when evidence falsely indicates that two or more variables are associated. Actually, a third variable is there which shows this relationship. Like आप कहते हो कि हाइट का रीडिंग एबिलिटी के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है, हालांकि ऐसा कोई बात नहीं है। हाइट का रीडिंग एबिलिटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं। इन दोनों के दरमियान एज एक ऐसा फैक्टर है जो एक रिलेशनशिप बनाता है कि हाँ जैसे जैसे हाइट बढ़ती है एज भी तो बढ़ती है ना। एज बढ़ने के साथ साथ रीडिंग एबिलिटी जो है उसके साथ रिलेशनशिप बढ़ता है। हाइट तो किसी बच्चे की भी बहुत जल्दी बढ़ जाती है। तो ये एक थर्ड वेरिएबल है जो स्पूरियस रिलेशनशिप को अवॉइड कर रहा होता है। ओके, नेक्स्ट वी विल कम टूवर्ड्स डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में आप डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स अगेन। ऑब्जर्वेशन विदाउट इंटरवेंशन एंड ऑब्जर्वेशन विद इंटरवेंशन। विदाउट इंटरवेंशन में तो आप बिल्कुल सिंपली वो देख सकते हैं जो कि एंथ्रोपोलॉजी में जो यूज होती है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है, उसमें विदाउट इंटरवेंशन आप किसी नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वर के तौर पे उनके साथ इन्वॉल्व हो जाते हो, उनके कल्चर को स्टडी करते हो और एक खास पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए, प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन के लिए उनका कल्चर के साथ उनका हिस्सा बन जाते हो और फिर उनको स्टडी करते हो। ये तो खैर एंथ्रोपोलॉजी में, लेकिन अदरवाइज भी अगर आप बच्चों के बिहेवियर को भी ऑब्जर्व करना चाहो तो विदाउट इंटरवेंशन आप नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वर के तौर पे उनके साथ मिक्सअप होके उनको स्टडी कर सकते हो। अब अगला है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन का पार्ट, दैट इज ऑब्जर्वेशन विद इंटरवेंशन। विद इंटरवेंशन का जब लफ्ज आता है, इंटरवेंशन जब आपकी जिस लेवल की होगी उस लेवल का आपका कंट्रोल होगा। अब इंटरवेंशन और कंट्रोल इन दो पॉइंट्स को आपने अंडरस्टैंड करना है। जब ऑब्जर्वेशन विद इंटरवेंशन के साथ चलेगी तो आपका कंट्रोल भी उसी लेवल का होगा। अब आप कंट्रोल पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में सिर्फ अगर आप देखें तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के साथ वर्सेस इसके आता है नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। इसमें जीरो कंट्रोल होता है आपका, इसमें जीरो कंट्रोल होता है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में। अब पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जो है पार्टिसिपेंट वर्सेस नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। आप किसी इन्वायरमेंट में पार्टिसिपेट करते हुए ऑब्जर्व करें या पार्टिसिपेट ना करते हुए ऑब्जर्व करें। सेकंड है आपका स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन के वर्सेस अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन आती है और इसमें कंट्रोल का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है, जबकि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन और नॉन पार्टिसिपेंट में कंट्रोल का लेवल जीरो था। और स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन में चूंकि ये स्ट्रक्चर्ड होती है तो इसमें कंट्रोल का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है। जब कंट्रोल का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है तो आपकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी भी बढ़ जाती है।
तो स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन में आप ये करते हो कि आपने कुछ चीजें पिन की होती है, वो पॉइंट्स आपने टैप किए होते हैं जिनको आपने स्टडी करना होता है। अब तीसरी इसकी जो टाइप है दैट इज फील्ड एक्सपेरिमेंट, और इसमें जो आपका इंटरवेंशन का लेवल है वो ज्यादा हो जाता है, और इसी तरह से कंट्रोल लेवल जो है वो स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन से भी ज्यादा हो जाता है, और ये मोस्ट एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इंटरवेंशन होती है। इसको कहते हैं फील्ड एक्सपेरिमेंट। फील्ड एक्सपेरिमेंट की एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। लाइक एक ऑब्जर्वेशन हुई, उसमें मार्केट में एक ऑब्जर्वेशन हुई, तो पता ये चला कि जो थेफ्ट रेट है वो 70% था। जो बैग्स हैं लेडीज के स्नैच कर लिए जाते थे, और उसको जब स्टडी किया गया तो ये पता चला कि ऑब्जर्वेशन के थ्रू स्टडी किया गया तो पता ये चला कि एक तो वो लो इल्यूमिनेटेड मार्केट थी, दूसरा उनका ओपनिंग फ्रंट और बैक जो था दोनों की ओपनिंग फ्रंट पे थी, एक ही रुख पे थी, तो कस्टमर्स की एक दूसरे की तरफ बैक होती थी। और ये दो पॉइंट्स जो हैं जब स्टडी किए गए और इनको इम्प्रूव किया गया तो पता चला कि उनका जो थेफ्ट रेट है जो 70% था वो 30% से भी बिलो हो गया। दैट इज द एग्जांपल ऑफ फील्ड एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट ये है कि ऑब्जर्वेशन जो है उसका आपका चेक लिस्ट बाकायदा तौर पे होती है। टू मेजर ऑब्जर्वेशन इवेंट सैम्पलिंग एंड टाइम सैम्पलिंग फॉर्म्स आर यूज्ड। टाइम सैम्पलिंग और इवेंट सैम्पलिंग फॉर्म्स ये होते हैं लाइक आपने एक बिहेवियर को डिफाइन कर लिया, और उस बिहेवियर में आपने ये देख लिया कि बिहेवियर आपका है रीडिंग, और उस बिहेवियर की डेफिनेशन ये है कि रीडिंग प्रिंट मटेरियल की हो या डिजिटल मटेरियल की हो, साइलेंटली हो या लाउडली हो। आपने अपना एक टाइम जो है वो 15 मिनट का इंटरवल है, और 15 मिनट में 3:30 से 5:30 तक 2 घंटों को 8 इंटरवल में आपने डिवाइड कर लिया, और नीचे आपके पास ऑप्शन है यस या नो की। जब आपने रीडिंग बिहेवियर को इस इंटरवल में चेक किया यस या नो, यहाँ पे टैप करते गए और टोटल आपको पता चल जाएगा कि एक बच्चे ने 2 घंटे में कितनी दफा रीडिंग की। इसी तरह से एक टैलीज की ये फॉर्म में है, इसमें भी आप अपने ड्यूरेशन को इंटरवल्स बना लेंगे, और जितनी दफा उसने एक बच्चे ने रीडिंग की आप उतनी टैलीज लगाते जाएंगे और बाद में उसको काउंट कर लेंगे। दिस इज एक्चुअली मेजरमेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। Next is interview. Interview is the qualitative method of data collection whose results are based in intensive engagement with respondents about the particular study. Interview can be structured or semi-structured or totally unstructured. Key informant interviews are qualitative in-depth interviews with people who know what is going on in the community. The purpose of the key informant interview is to collect information from the wide range of the people. अब how to conduct the key informant interview किस तरह से conduct करते हैं? पहले आप उसके लिए formulate study questions, prepare short interview guide, select key informant, conduct interviews, take adequate notes, analyze interview data, check the reliability and validity. Survey. In short, सर्वे क्या टेक्निक है? सर्वे एक ऐसी टेक्निक है जिसमें बहुत कम वक्त में बहुत ज्यादा लोगों की आरा जब आपको कलेक्ट करनी होती है तो आप सर्वे की तरफ जाते हो, और सर्वे की सूरत में आप ओपिनियन लेते हो। फोकस ग्रुप डिस्कशन। Focus group discussion involves gathering people from similar background or experiences together to discuss the specific topic of interest. A focus group is a group interview of approximately 6 to 12 people who share similar characteristics or common interest. Focus groups are qualitative data collection method. The common simplest method for selecting participants for focus group is called purposive or convenience sampling. अब in short ये है कि focus group discussion actually एक group interview है
जिसके अंदर एक ही तरह के एक ही टॉपिक पे जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको इकट्ठा किया जाता है और उनकी आरा लेने के लिए एक डिस्कशन जनरेट की जाती है जो बहुत ही हेल्दी होती है, जिसके साथ आपके पास एक ऐसी आउटपुट आती है जो बहुत सारे लोगों की एक वक्त में आरा आपके पास लेके आ रही होती है और आप उनसे क्या चीज अखज करते हो, क्या फाइंडिंग्स, वो आपके लिए बहुत ही एक पर्पसफुल चीज होती है। फोकस ग्रुप डिस्कशन का एक प्रोटोकॉल होता है बाकायदा। फोकस ग्रुप डिस्कशन बिल्कुल आप ये जहन में रखें कि जैसे ये पॉलिटिकल टॉक शोज होते हैं ना, उस टाइप की एक चीज होती है। उसका डेकोरम ये होता है कि उसमें एक जो होस्ट होता है उसके लिए जो टर्म यूज होती है उसको मीडिएटर या फैसिलिटेटर कहते हैं, और उसके अलावा बाकी लोग जो हैं वो गेस्ट होते हैं। लेकिन उसके जो मीडिएटर होता है उसको हेल्प आउट करने के लिए एक दो लोग मौजूद होते हैं जो इन गेस्ट्स की कॉन्सेंट के साथ सारी रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं और जो थीम्स वो जनरेट कर रहे होते हैं और वो सारा कुछ उसकी ट्रांसक्राइब करने के बाद की बात है। लेकिन एज इट इज हर चीज रिकॉर्ड हो रही होती है, एविएट्स यूज हो रहे होते हैं उसमें, रिकॉर्डिंग ऑडियो वीडियो हो रही होती है। लेकिन इसके अलावा जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो भी लिए जाना बहुत जरूरी है। समटाइम्स डिवाइस की कोई ना कोई टेक्निकल एरर की वजह से समटाइम्स ऐसा होता है कि पूरा रिकॉर्ड जो है वो जाया होने के चांसेस होते हैं, तो वो जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं वो बहुत ही इफेक्टिव होते हैं। तो ये एक डेकोरम होता है। इस डेकोरम के लिए के साथ जो चीजें इन व्यू रखी जाती हैं, खास तौर पे फोकस ग्रुप डिस्कशन के लिए कुछ एथिकल कंसिडरेशन बहुत ज्यादा इन व्यू रखने की जरूरत होती है। दैट इज रिस्पेक्ट पोटेंशियल पावर इम्बैलेंस। पोटेंशियल पावर इम्बैलेंस इन अ सेंस के जब बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं ना, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ लोग अपनी सोशल स्टेटस की वजह से, पॉपुलैरिटी की वजह से, अथॉरिटी की वजह से या एक्सपर्टीज की वजह से ज्यादा डोमिनेट होने की कोशिश करते हैं। और फिर यहाँ पे जो मीडिएटर होता है उसका काम होता है कि इस चीज को कंट्रोल करे, क्योंकि उस वक्त सारे गेस्ट उसके लिए इक्वली वर्दी होते हैं। तो ऐसा ना हो कि ये पोटेंशियल पावर इम्बैलेंस जो है, ये प्रॉब्लम या माहौल जो है फोकस ग्रुप डिस्कशन का वो बहुत ही अपसेट कर देता है, जिससे ये होता है कि जो आपकी आउटपुट आनी होती है वो धरी की धरी रह जाती है। माहौल बड़ा टॉक्सिक हो जाता है जिसको मीडिएटर को संभालना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा एक और पॉइंट बहुत जरूरी होता है कि समटाइम्स एक्सप्लॉयटेशन होती है पार्टिसिपेंट की, कि जैसे पॉलिटिकल ऐसी गैदरिंग होती है सोशल ग्रुप डिस्कशन में, तो कुछ लोग जो है वो डोमिनेट होने की कोशिश करते हैं और उसमें ये होता है कि एक या दो या तीन लोग मिलके किसी एक बंदे को प्रेशराइज कर लेते हैं स्टार्ट में, और फिर पूरी डिस्कशन में उसको प्रेशराइज्ड ही रखते हैं। और यहाँ पे अगेन मीडिएटर का रोल है कि वो ऐसा इन्वायरमेंट, टॉक्सिक किस्म का इन्वायरमेंट क्रिएट ना होने दे, हेल्दी इन्वायरमेंट रखे और वहां पे मीडिएट करे, और जो आपकी एक डिस्कशन का मोड चल रहा है उसको अपने अप्रोप्रिएट टॉपिक और फिक्स पर्पस की तरफ लेके जाए। वहां पे स्टेयरिंग सारा उस मीडिएटर के हाथ में होता है कि उसने फोकस ग्रुप डिस्कशन को किस तरफ लेके जाना है, बजाय इसके कि अनहेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट हो। ओके, इसके अब स्टेप्स हैं कि पर्पस है, सबसे पहले इसका वो क्लियर होना चाहिए, पार्टिसिपेंट्स और लीडर को सिलेक्ट करना चाहिए, मैनेज द एटमॉस्फेयर, डेवलप क्वेश्चंस, कंडक्ट अ सेशन, एनालाइज द रिजल्ट। उसके बाद आप फाइनली कंक्लूड करते हो कि आपके रिजल्ट्स क्या हैं। नेक्स्ट इज केस स्टडी। Case study is detailed study of specific subject such as person, group, place, event, organization or phenomena. Case studies are commonly used in social, educational, clinical and business research. अब डिपेंड करता है कि आपने ये तो मतलब हम बहुत पर्टिकुलरली ज़हन में है जी एक बंदे की इन डेप्थ स्टडी को केस स्टडी कहते हैं, नहीं। किसी इवेंट की डिटेल में जाना, किसी ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल में जाना, किसी फिनोमिना की डिटेल में जाना, हमारे पिछले 2 सालों में पर्टिकुलरली नाम नहीं लूंगी, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए हैं कि जिसको हम एज केस स्टडी ले सकते हैं।
पर्सन को तो हम ले ही सकते हैं, बट इट डिपेंड्स कि आपका सब्जेक्ट क्या है और आप कौन सी केस स्टडी की टाइप लेना चाहेंगे। डिस्क्रिप्टिव स्टडी, explanatory study, exploratory study, intrinsic case study, instrumental case study, or collective case studies. Ethical issues in data collection. Ethical issues may determining the ethical consideration assessed, assessing whether an informed consent was provided, assessing whether the privacy of participants was ensured. The criteria also determine whether data sharing observed informed consent, assessing whether the data collections employed protocols to protect identity of participants. Okay. Best practice in data collection. Data collection की best practice में जो चीजें आपके in view आती हैं, सबसे पहले ethical consideration. ये बहुत जरूरी है। जब तक आप ethical पॉइंट्स को इन व्यू नहीं रखोगे, आपके पास डाटा वर्दी वे में नहीं आ सकता। डाटा क्वालिटी क्या है, एक्यूरेसी क्या है, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी क्या है, पायलट टेस्टिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेस्टिंग टूल्स एंड टेक्निक्स बिफोर फुल स्केल डाटा कलेक्शन। आप अपने डाटा कलेक्शन को फुल टाइम यूटिलाइज करने स्टार्ट करने से पहले आप 10 या 20 क्वेश्चंस को एज पायलट स्टडी वो चेक करें। आपके स्केल में कोई इशू आ रहा है, डाटा टेक्निक्स में आ रहा है, आपको रिस्पांस कैसा मिलता है, दिस इज द बेस्ट वे। मेक अ मेमोरी बुक इन हार्ड फॉर्म, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड वेरी प्रैक्टिकल पॉइंट कि आप अपनी एक मेमोरी बुक जरूर बनाएं। जब आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो बहुत सारी ऐसी टेक्निकलिटीज समटाइम्स आपकी विंडो जवाब दे जाती है, कुछ भी नहीं पता होता, आपकी विंडो रीसेट करवानी पड़ जाती है। आपके पास एक मेमोरी बुक होनी चाहिए जिसमें ईच एंड एवरीथिंग आपके पास बैकअप के तौर पे मौजूद हो कि आपने डाटा का स्ट्रक्चर ये रखा था, ये सॉर्टिंग थी, इतने क्वेश्चनियर आपने वहां से फिल करवाए, इतने यहाँ से फिल करवाए, डाटा जो भी था आपने उसको जितना काम कर लिया, डाटा एंट्री कर ली। बहुत जरूरी है कि बैकअप के तौर पे वो डाटा एंट्री अपने ही आपको बेशक मेल कर दें, लेकिन आपके पास बैकअप के तौर पे जरूर कुछ ना कुछ होना चाहिए। चैलेंजेस इन डाटा कलेक्शन, ये फनल की बड़ी जबरदस्त एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन थी इस काम की कि जब आप डाटा जितना भी इजी हो, आप एक बड़े माइंडसेट के साथ जब फील्ड में जाते हैं तो आप कहते हैं काम ही कोई नहीं, डाटा तो बड़ी जल्दी कलेक्ट हो जाएगा, ये तो 10 दिन का काम है। ये वो डाटा है जो आपको बहुत सारा मिलता है, लेकिन आपके इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए जो आपके काम का डाटा होता है वो ये होता है। तो ये जो है चैलेंजेस इन डाटा कलेक्शन, ये बहुत ही प्रैक्टिकली जिन लोगों ने यहाँ से गुजरे हुए हैं उन्हें पता होगा कि डाटा कलेक्ट जब करने जाते हैं तब डाटा कितना मिलता है, जो एक्चुअली आप डाटा एंटर कर रहे होते हैं तो आपके पास इनपुट क्या होती है जो आप लेके बैठे हैं। फाइंडिंग रेलिवेंट डाटा, दैट इज वेरी डिफिकल्ट कि आपको रेलिवेंट डाटा मिल जाए। डाटा क्वालिटी इश्यूज आते हैं, लो रिस्पॉन्स डाटा, लोग रिस्पॉन्स नहीं करते, समटाइम्स इनकम्प्लीट आपको क्वेश्चन दे देते हैं। बाइसिस को आपने किस तरह से कंट्रोल करना है, रिसर्चर बाइसिस को, रिस्पॉन्स बाइसिस को। समटाइम्स ये होता है कि पार्टिसिपेशन जो है ना, नॉन रिस्पॉन्स लाइक लैक ऑफ पार्टिसिपेशन, लोग अवॉइड करते हैं, आपका क्वेश्चनियर फिल नहीं करते। डाटा मैनेजमेंट, हैंडलिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा, बहुत बड़े ह्यूज और बल्क डाटा को हैंडल करना और सम अप करना, ये रियली एक चैलेंज है। ओके, दिस इज द कंक्लूजन ऑफ complete topic that is again divided into 3 parts, and I have concluded by parts. Part 1 is based on data, and the conclusion of part 1 is robust data and credible sources are fundamental to advancing knowledge and making information decisions. डाटा का बहुत ही एक्यूरेट, क्रेडिबल होना आपकी फाइंडिंग के लिए, आपके डिसीजंस के लिए, आपके रिजल्ट्स के लिए बहुत ही बुनियादी चीज है। पार्ट 2 दैट इज बेस्ड ऑन सैम्पलिंग,
if a suitable sampling strategy is used, appropriate sample size is selected, and necessary precautions are taken to reduce sampling and measuring errors, then a sample should yield valid and reliable information. वही वाली बात कि आप अपने सैम्पलिंग टेक्निक को बहुत अप्रोप्रिएट बनाएं और उसके अलावा बेस्ट एफर्ट करें कि आपका सैंपल जो है वो रिप्रेजेंटेटिव हो, सो दैट आपका सैम्पलिंग एरर जो है वो कम हो सके और एक्यूरेसी ज्यादा हो सके. Part 3 is related to tools and techniques. Effective and ethical use of diverse data collection tools and techniques is essential for producing credible and impactful research outcomes. अब टूल्स एंड टेक्निक्स की सिलेक्शन आपके आउटकम्स के ऊपर क्या इफेक्ट करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपकी सिलेक्शन, आपकी चॉइस, आपकी मेथोडोलॉजी, ये बहुत मैटर कर रही होती है आपकी फाइंडिंग्स पे. Okay, these are the references, and actually this is the crux of my lecture, and for further information you can consult these references. Any question? अस्सलाम वालेकुम. मैं शाजिया, मैं डॉक्टर साबरा सुल्ताना बात कर रही हूँ. मेरा सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स ही है और मुझे ये काफ़ी मेरे अपने ही सब्जेक्ट से रिलेटेड लगा और बहुत ही वेल प्लान्ड लेक्चर था. आखिर में आपने जब पार्ट 1 की रोबस्ट का वर्ड यूज़ किया, थोड़ा सा उसको क्लियर कर दीजिए कंक्लूजन में. Okay. रोबस्ट एक्चुअली ये एक्यूरेसी की फॉर्म में आ रहा है. स्ट्रॉन्ग, हेल्दी ओके. और जिसमें लेस उसका एरर हो और मोर रिप्रेजेंटेटिव हो. रोबस्ट डाटा तो वही होगा ना जो बहुत हेल्दी और बहुत आपके इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया को फॉलो करता हुआ हो. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. जी मैडम, बहुत अच्छा आपका लेक्चर था, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत वेल कंस्ट्रक्टेड. तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि बेस्ट टेक्निक जो है वो हम जो भी हमारी स्टूडेंट ओरिएंटेड रिसर्च होती है उसमें स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट टेक्निक्स जो कि वो यूज़ भी कर सकें और जो उनके लिए बहुत मुश्किल ना हो, वो क्या होगी? और अप्रोप्रिएट साइज जिसमें स्टैटिस्टिकल जो एरर्स हैं वो कम हो, एटलीस्ट कितने सब्जेक्ट्स का जो साइज है वो अप्रोप्रिएट होता है? जी, साइज के मुतालिक जो आपने बात की है वो तो आपको जी पार जो कैलकुलेटर है वो 3 चीजें मैंने आपको बताई हैं. उसकी इनपुट में जब आप देंगे तो वो आउटपुट की सूरत में आपको साइज बताएगा, सैंपल साइज. और वो सैंपल साइज अप्रोप्रिएट है. जब आप कहीं भी उसको वाइवा में डिफेंड करेंगे तो आप जी पार का रेफरेंस देते हुए कि जी हमें जी पार ने गाइड किया था कि आपका सैंपल साइज ये होगा, तो उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगी. और ये मैंने आपको जरूर बताया था कि जी पार आपको एटलीस्ट वो सैंपल बताता है जिसके ऊपर आप रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं कॉन्फिडेंटली. अगर आप उससे ज्यादा थोड़ा सा सैंपल बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी हमने अभी डिस्कस किया है कि सैंपल साइज जितना बड़ा होगा एरर उतना ही रिड्यूस होगा और वो पॉपुलेशन के करीब जाता जाएगा ना. और मेथड में जो आपने बात की है तो वो वही वाले मेथड्स हैं जो पर्टिकुलरली हम क्रॉस सेक्शनल रिसर्च ही करवाते हैं और पर्पसिव सैम्पलिंग टेक्निक ही करवाते हैं. मोस्ट अप्रोप्रिएटली बच्चों को इस लेवल पे यही सूट करते हैं. जी ठीक है. एक और क्वेश्चन ये है कि सर्वे का जो सैंपल होता है उसमें और रिसर्च के सैंपल में कोई डिफरेंस होता है, यानी वो बड़े छोटे का? नहीं, सर्वे का ज्यादा होता है, ज्यादा नहीं, तादाद होती है? आप अपने जो कैलकुलेटर को जी पार को यूज करेंगे ना वो वही होगा सेम. थैंक यू सो मच.
हेलो, जी जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर शेरमान बात कर रहा हूँ सरगोदा से जी। एक दो तजावीज़ भी हैं मेरी तो इस हवाले से कि देखा ये गया है कि नॉर्मली ज़्यादातर फोकस जो होता है वो स्लाइड्स पे होता है। तो आई थिंक ये जितना आपके सामने पार्टिसिपेंट बैठते हैं, मैनी ऑफ देम वुड हैव बीन पीएचडी। तो मेरी एक तजवीज़ ये है कि बेहतर ये होता है कि जहाँ पे सैम्पलिंग सैम्पलिंग की बात हो वहाँ पे कम से कम उनसे थोड़ा-सा अगर आप उनकी राय ले लेंगे, जी आपकी स्टडी थी उसमें आपने किस तरह की। इसी तरह मुख्तलिफ लोग हैं, कुछ साइंसेज़ के होंगे, कुछ सोशल साइंसेज़ के होंगे। तो थोड़ा इंटरैक्टिव हो जाए और फिर एग्ज़ाम्पल रेलेवेंट होंगी तो उससे अंडरस्टैंड करने में बेहतर होता है। जी, क्योंकि बिल्कुल ठीक कह स्लाइड्स रहे हैं में आप, वो बड़ी अच्छी डिस्कशन जनरेट हो जाएगी। जी, जी, तो स्लाइड्स पे नॉर्मली ये बुक्स में भी वही चीज़ अवेलेबल है, तो इस वर्कशॉप का या जो ट्रेनिंग है, इसका बेहतर यही होता कि जहाँ पे कोई चीज़ क्वांटिटेटिव आता है, तो उसके बारे में थोड़ा-सा रेलेवेंट एग्ज़ाम्पल शेयर कर लीजिए, आप कर लें या आप पार्टिसिपेंट से पूछ लें, क्वालिटेटिव आता है उसकी पूछ लें, मिक्स मेथड है उसकी पूछ लें। तो उससे ज़रा लर्निंग भी ब्रॉडर हो जाएगी और जो लोग बीएस को पढ़ा रहे हैं, रिसर्च के हवाले से काम, उनकी ज़रा अंडरस्टैंडिंग भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। तो ये थोड़ा-सा नोटेड एंड जो है ना एक्नॉलेज्ड, जी, वेरी गुड। हाँ। ये जो ट्रेनिंग वन वे चल रही है, जस्ट लाइक वी फील दैट वी आर जस्ट लाइक अ स्टूडेंट इन क्लासरूम, टीचर आया वो अपना काम किया, जरा आखिर में 2-4 मिनट हमारे पास बचते हैं और उसमें कोई क्वेश्चन हो पाते हैं, तो थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनाइजर है उनसे भी रिक्वेस्ट है, रिसोर्स पर्सन से भी रिक्वेस्ट है टू मेक देम इंटरेक्टिव, लोगों की राय भी लें, उनसे भी उनका इनपुट है, बिकॉज दे आर हाईली एक्सपीरियंस्ड एसोसिएट प्रोफेसर हु आर पार्ट ऑफ दिस ट्रेनिंग। एब्सोल्युटली राइट। इससे मेरा ख्याल में बेहतर तो हमारे लिए भी लर्निंग होगी और रिसोर्स पर्सन भी कुछ इन जो एक्सपीरियंस लोग हैं इनके तजुर्बात से सीख सकेंगे। बहुत शुक्रिया जी। ओके, थैंक यू वेरी मच। Okay, ma'am, the time is wind up. Thank you so much, ma'am. वेलकम। Welcome.